الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام حافظ مقبول احمد ہے۔ ریئل لائف ود قرآن یوٹیوب چینل کے ذریعے آپ احباب کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو میم کی اہمیت بتاؤں گا، میم میں کی جانے والی سب سے زیادہ غلطی کے بارے میں بتاؤں گا، میم کی 2 خوبیاں بتاؤں گا، میم کو پڑھنے کے 2 بہترین اصول بتاؤں گا جن کو سیکھ کر آپ اپنی آواز میں خوبصورتی پیدا کر سکتے ہیں۔ اگر آپ میم کو صحیح طریقے سے پڑھنا سیکھنا چاہتے ہیں تو پھر اس ویڈیو کو شروع سے لے کر آخر تک دیکھیں۔ انشاءاللہ العزیز اس ویڈیو کے ذریعے آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا۔ تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں میم میں پائے جانے والی 2 خوبیوں کی۔ تو میم میں جو 2 خوبیاں پائی جاتی ہیں وہ یہ ہے، میم میں صرف غنہ ہے، میم کو غنے کے ساتھ بھی پڑھا جاتا ہے اور میم کو بغیر غنہ کے بھی پڑھا جاتا ہے۔ تو 2 خوبیاں ہوگی، غننے والی اور بغیر غنہ کی۔ تو اکثر جو غلطی ہوتی ہے جو میم کو پڑھتے ہوئے اکثر لوگ کرتے ہیں وہ یہ ہوتی ہے کہ میم میں جو صرف غنہ ہے میم کو بغیر غنہ کے پڑھتے ہیں، حالانکہ یہ بہت بڑی غلطی ہے۔ تو یقین مانے اگر آپ میم کو صحیح طریقے سے پڑھیں گے، جہاں پر میم میں صرف غنہ پائی جاتی ہے، میم کو صرف غنہ کے ساتھ اگر آپ ادا کریں گے، میم کو صرف غنہ کے ساتھ اگر پڑھیں گے تو پھر آپ کی آواز میں خوبصورتی پیدا ہوگی۔ تو میم کو پڑھنے کے جو بہترین اصول ہیں، جہاں پر ہم نے میم پر غنہ کرنا ہے اور جہاں پر ہم نے میم پر غنہ نہیں کرنا، وہ اصول انشاءاللہ العزیز آگے چل کر میں آپ کو بتاؤں گا کہ وہ کون سے حروف ہیں جن کے آ جانے کی وجہ سے ہم نے میم پر غنہ کرنا ہے، اور وہ کون سے حروف ہیں جن کے نہ آنے کی وجہ سے ہم نے میم میں غنہ نہیں کرنا۔ تو میم یہ کبھی متحرک ہوگا، کبھی یہ میم جو ہے یہ میم مشدد ہوگا، کبھی یہ میم ساکن ہوگا۔ اسی طرح جس طرح نون کبھی متحرک ہوتا ہے، کبھی ساکن ہوتا ہے اور کبھی مشدد ہوتا ہے، اور اس کو پڑھنے کے مختلف حالتیں ہیں۔ تو نون پر میں ویڈیو بنا چکا ہوں، تو اگر آپ نے نون والی ویڈیو نہیں دیکھی تو اس ویڈیو کا لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا، آپ اس ویڈیو کو ضرور دیکھیں۔ انشاءاللہ العزیز اس ویڈیو کے ذریعے آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا۔ اب جہاں پر میم متحرک کو ہم نے میم کو کس طرح پڑھنا ہے، تو میم متحرک کو ہم نے بالکل اسی طرح پڑھنا ہے جس طرح نون متحرک کو ہم نے پڑھنا تھا۔ تو نون متحرک میں غنہ نہیں ہوتا، اسی طرح میم متحرک میں بھی غنہ نہیں ہونا۔ تو میم کو پڑھتے ہوئے آواز کو ناک میں لے جا کر فوراً چھوڑ دینا ہے، میم زبر ما، میم زیر می، میم پیش مو۔ تو خیر میم متحرک ہو تو اس میں تو غلطی نہیں ہوتی، کیونکہ ہم میں سے اکثر لوگ چاہے بڑے ہوں چاہے چھوٹی ہوں وہ میم متحرک کو صحیح طریقے سے پڑھ ہی لیتے ہیں۔ میم جب مشدد ہو تو یہاں پر غلطی ہو جاتی ہے، کیونکہ جب میم مشدد ہو تو پھر اس میں غنہ ہونا ہے۔ جس طرح نون مشدد ہو تو اس میں غنہ ہوتا ہے، اسی طرح جب میم مشدد ہوگا تو اس پر بھی غنہ ہوگا۔ جس طرح کہ یہ آپ کو نظر آ رہا ہے، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر میم پر شد آ گئی، تو جہاں پر میم پر شد ہوگی وہاں پر ہم نے میم پر غنہ کرنا ہے، آواز کو ناک میں لے جا کر تھوڑا سا لمبا کرنا ہے۔ تو غننے پر میں ویڈیو بنا چکا ہوں، اگر آپ نے غننے والی ویڈیو نہیں دیکھی تو اس ویڈیو کا لنک بھی آپ کو اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں مل جائے گا۔ آپ پہلے غننے والی ویڈیو دیکھیں تاکہ آپ کو پتہ چل سکے کہ غنہ ہم نے کرنا کس طرح ہے۔ تو یہاں پر غنہ ہوگا، غنہ کیا ہے، آواز کو ناک میں لے جا کر تھوڑا سا لمبا کرنا ہے۔ تو یہاں پر میم کے اوپر شد آ گئی، شد یہ چھوٹا سا جو ڈبلی ہوتا ہے اس کو شد کہا جاتا ہے۔ جس طرح کہ آپ کو نظر آ رہی ہے، پہلے بھی میں بتا چکا ہوں، تو جو یہ چھوٹا سا ڈبلیو ہے اس کو شد کہا جاتا ہے، اور جس حرف پر شد ہو اس حرف کو مشدد کہا جاتا ہے۔ تو یہاں پر میم مشدد ہے، میم کے اوپر شد آ گئی، تو یہاں پر ہم نے میم مشدد کو غننے کے ساتھ پڑھنا ہے، آواز کو ناک میں لے جا کر تھوڑا سا لمبا کرنا ہے۔ تو اس کو ہم نے کس طرح پڑھنا ہے، ام، یہاں پر یہ والا آگے آ گیا، اس کو پڑھیں گے ام، ام، میم مشدد سے پہلے زیر آ گئی، اور اسی طرح میم مشدد سے پہلے والا حرف اگر مضموم ہو یعنی کہ اس پر پیش ہو تو پھر وہاں پر ابھی میم میں ہم نے غنہ کرنا ہے، یعنی کہ جہاں پر بھی میم مشدد ہوگا وہاں پر ہم نے میم کو غننے کے ساتھ پڑھنا ہے۔ تو اس کو کیسے پڑھیں گے، ام، 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 آواز کو ناک میں لے جا کر تھوڑا سا لمبا کیا اور پھر چھوڑ دیا۔ تو میم جب بھی مشدد ہوگا تو اس میں صفت غنہ ضروری ہے، وہاں پر میم کو ہم نے صفت غنہ کے ساتھ پڑھنا ہے۔ جس طرح نون مشدد تھا تو نون مشدد کو ہم نے غنہ کے ساتھ پڑھنا تھا، تو یہ میم مشدد اور نون مشدد یہ دونوں سیم ہے غننے کے اعتبار سے، کہ دونوں میں غنہ ہوگا، نون مشدد میں بھی غنہ ہوگا اور میم مشدد میں بھی غنہ ہوگا۔ تو اس کو کیسے پڑھیں گے، ام، ام،
तो जब अजान अजान पढ़ते हैं तो अजान में जब हम ये कलमा पढ़ते हैं अशहदु अन्ना मुहम्मद, तो यहाँ पर नून मुशद्दद भी आता है और मीम मुशद्दद भी आता है। तो जिस तरह मैंने आपको पहले बताया कि अगर आप मीम को गुन्ना के साथ पढ़ेंगे तो फिर आपकी आवाज़ में खूबसूरती पैदा होगी। तो आवाज़ में खूबसूरती तभी पैदा होगी जब हम मीम मुशद्दद को गुन्ना के साथ पढ़ेंगे, या जहाँ पर भी मीम में गुन्ना होना है वहाँ पर हम मीम में गुन्ना करते हुए मीम को पढ़ेंगे। तो यहाँ पर हम जो मैंने आपको बताया कि अजान हम पढ़ते हैं तो अजान पढ़ते हुए नून मुशद्दद भी आता है, मीम मुशद्दद भी आता है। तो जब हम पढ़ते हैं तो देखें, जब हम गुन्ना नहीं करेंगे तो फिर कैसे पढ़ेंगे, अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह, तो इसमें खूबसूरती नहीं है। और जब इसमों को हम गुन्ना के साथ पढ़ेंगे तो फिर इसमें खूबसूरती पैदा होगी। कैसे, देखें, अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह, देखें कितना खूबसूरती के साथ मैंने पढ़ा। तो जब नून या मीम मुशद्दद हो तो इनमें सिर्फ गुन्ना होती है। नून और मीम मुशद्दद को हमने गुन्ना के साथ पढ़ना है और आवाज को नाक में ले जाकर थोड़ा सा लंबा करना है। तो ऐसा अगर करेंगे, मीम और नून को सिर्फ गुन्ना के साथ पढ़ेंगे तो इंशाअल्लाह उल अजीज आपकी आवाज में खूबसूरती पैदा होगी। ठीक हो गया। तो मीम जब मुशद्दद होगा, जिस तरह की आपको नजर आ रहा है, मीम जहां पर भी मुशद्दद होगा तो वहां पर हमने मीम को गुन्ने के साथ पढ़ना है। ये दूसरी हालत होगी। अब तीसरी हालत, ये वाली आ गई साकिन वाली। तो जब मीम साकिन हो तो इसकी फिर दो हालतें बन जाती है। तो ये दो कायदे समझ लें, दो उसूल समझ लें, या इसकी दो हालतें समझ लें। जब मीम साकिन होगा तो वहां पर कभी गुन्ना होगा, कभी गुन्ना नहीं होगा। और जिस तरह के मैंने आपको नून में बताया था कि जब नून साकिन हो तो फिर वहां पर अक्सर गलती होती है। इसी तरह जब मीम साकिन होगा तो फिर हमने आगे वाले हरफ को देखना है। इसी हरफ में यानी कि मीम साकिन में ही अक्सर गलती होती है। मीम साकिन के बाद अगर वो हरफ आ रहे हैं जिनमें गुन्ना होना है तो फिर हमने मीम में गुन्ना करना है। और अगर मीम साकिन के बाद वो हुरूफ नहीं आ रहे जिनमें हमने गुन्ना नहीं करना तो फिर हमने मीम को बगैर गुन्ना के पढ़ना है। तो मीम जब साकिन होगा फिर आगे देखा जाएगा। तो मीम साकिन के बाद हमने किन हरफों को देखना है, जो हुरूफ गुन्ने वाले हैं। तो गुन्ने वाले कौन से हुरूफ हैं, गुन्ने वाले दो हुरूफ हैं। मीम साकिन के बाद मीम आ जाए या मीम साकिन के बाद बा आ जाए, जिस तरह की आपको यहाँ पर नजर आ रहा है। ये देखिए गुन्ना, ये गुन्ने वाला हो गया कि मीम पर हमने कब गुन्ना करना है। तो मीम पर गुन्ना कब होगा, जब मीम साकिन के बाद मीम आ जाए या बा आ जाए। तो ये दो हुरूफ ही ऐसे हुरूफ हैं जिनके आने की वजह से मीम में गुन्ना होगा। तो मीम साकिन के बाद जहां पर भी मीम आ जाए या मीम साकिन के बाद जहां पर भी बा आ जाए तो वहां पर हमने लाजमी गुन्ना करना है। और जहां पर मीम साकिन के बाद इन दो हरफों के अलावा कोई हरफ आ जाए तो वहां पर गुन्ना नहीं होगा, ये अदम गुन्ना हो जाएगा। ये देखें, ये दूसरी किस्म आ गई। तो ये गुन्ना वाली पहली किस्म आ गई। तो गुन्ना कहाँ पर होगा, जहां मीम साकिन के बाद मीम या बा आ जाए। और कहाँ पर गुन्ना नहीं होगा, वहां पर गुन्ना नहीं होगा जहां मीम साकिन के बाद मीम या बा के अलावा कोई हरफ आ जाए। तो अब मेरे सामने बहुत सारी मिसालें हैं जिनसे हम समझ सकते हैं कि कहाँ पर हमने गुन्ना करना है और कहाँ पर गुन्ना नहीं करना। तो ये बहुत सारी मिसालें मेरे सामने मौजूद हैं जिस तरह के आपको यहाँ पर नजर आ रही हैं। तो मैं यहाँ पर वजाहत नहीं करूंगा, सिर्फ पढ़कर आपको बताऊंगा और आपको समझाऊंगा कि जहाँ पर मीम के बाद मीम आ जाए वहां पर हमने गुन्ना करना है। जिस तरह के ये देखें, ये जो कॉलम है इस कॉलम में आपको वो तमाम हुरूफ नजर आ रहे हैं जी। ये देखें, यहाँ पर मीम साकिन के बाद मीम आ रहा है, ये देख लें। यहाँ पर मीम साकिन के बाद मीम मुशद्दद आ गया तो यहाँ पर गुन्ना होगा। तो इसको कैसे पढ़ेंगे, तुम मुज़लिमून, तुम मुज़लिमून। मीम साकिन के बाद मीम आ गया तो यहाँ पर गुन्ना होगा। यहाँ पर भी मीम साकिन के बाद मीम आ गया तो यहाँ पर भी गुन्ना होगा। फहुम मुकमहून, इसी तरह यहाँ पर आ जाए लहुम मा कसब्तुम, मीम साकिन के बाद मीम आ गया, यहाँ पर भी गुन्ना होगा। वहुम मुरिदून, यहाँ पर भी मीम साकिन के बाद मीम आ गया तो यहाँ पर भी गुन्ना होगा। इसी तरह आतैतुकुम मिन किताबिन, आतैतुकुम, मीम साकिन के बाद मीम आ गया तो यहाँ पर भी गुन्ना होगा। इसी तरह यहाँ पर मीम साकिन के बाद मीम आ गया तो यहाँ पर भी गुन्ना होगा। तो इस कॉलम में जितने भी आपको ये नजर आ रहे हैं, ये जितने भी मिसालें हैं, यहाँ पर मीम साकिन के बाद मीम आ रहा है तो यहाँ इन तमाम मिसालों में हमने क्या करना है, मीम साकिन के बाद मीम के आ जाने की वजह से गुन्ना होगा, आवाज को नाक में ले जाकर थोड़ा सा लंबा करना है। अब ये दूसरा देखें, इस कॉलम में देखें तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर मीम साकिन के बाद आगे बा आ रहा है। तो जिस तरह मैंने आपको बताया कि मीम साकिन के बाद बा आ जाए तो वहां पर भी गुन्ना होगा। तो अब इन तमाम मिसालों को हम देखते हैं, इनको हमने कैसे पढ़ना है। यहाँ पर मीम साकिन के बाद बा आ गया तो कैसे पढ़ेंगे, तरमीहिम बिहिजारतिन,
ठीक हो गया, वो यहाँ पर गुन्ना हो गया। इसी तरह वमा हुम बिमुमिनीन, मीम साकिन के बाद बा आ गया, गुन्ना हो गया। अलैकुम बिवकील, मीम साकिन के बाद बा आ गया, गुन्ना हो गया। कुंतुम बिही, मीम साकिन के बाद बा आ गया, गुन्ना हो गया। इसी तरह तअतीहिम बिआयतिन, मीम साकिन के बाद बा आ गया, गुन्ना हो गया। इसी तरह बअदुकुम बिबअदिन, मीम साकिन के बाद बा आ गया, गुन्ना होगा। तो मुख्तसर ये है कि मीम साकिन के बाद जहां पर भी मीम या बा, इन दो हरफों में से कोई भी हरफ आ जाए तो वहां पर गुन्ना होगा। और जहां पर मीम साकिन के बाद मीम या बा के अलावा कोई हरफ आ जाए, कितने हरूफ हैं, 29 हरूफ हैं, इन दो हरफों के अलावा 27 हरूफ, उन हरफों में से कोई भी हरफ आ जाए तो वहां पर गुन्ना नहीं होगा। जिस तरह यहाँ पर आपको ये नजर आ रहा है, मीम साकिन के बाद बा गया, कोई गुन्ना नहीं होगा। अलैहिम गज़बुन, और यहाँ पर देखें मीम साकिन के बाद फा आ गया, हुम फीहा, यहाँ पर गुन्ना नहीं होगा, हुम फीहा, हुम फीहा। इसी तरह यहाँ पर मीम साकिन के बाद काफ आ गया, ज़ालिकुम क़ौलुकुम, कोई गुन्ना नहीं होगा। इसी तरह व अमतरना, व अमतर, ठीक हो गया। मीम साकिन के बाद ता आ गया तो यहाँ पर भी गुन्ना नहीं होगा। तो इस कालम में जितने भी आपको अल्फाज नजर आ रहे हैं, यहाँ पर मीम साकिन के बाद कहीं पर मीम नहीं है और कहीं पर बा नहीं है, तो मीम साकिन के बाद मीम और बा के ना होने की वजह से यहाँ पर गुन्ना नहीं होगा। तो अब जरा इसको रिपीट कर लेते हैं कि मीम पर हमने कहाँ पर गुन्ना करना है और कहाँ पर गुन्ना नहीं करना। तो ये देखिए, इस नक्शे का आप स्क्रीनशॉट ले लें ताकि आपको याद करने में आसानी हो। तो मुतहर्रिक जब भी मीम होगा तो उस मुतहर्रिक मीम में गुन्ना नहीं होगा, जिस तरह के मालिकी आ गया। अब दूसरा मुशद्दद आ गया, जहां पर मीम मुशद्दद होगा उसमें गुन्ना जरूरी है, जिस तरह की आपको मिसाल नजर आ रही है, अम्म, अम्म। तो नून और मीम, इन दोनों के बारे में ये बात आप याद रखें कि जहां पर भी नून या मीम मुतहर्रक होगा उसमें गुन्ना नहीं होगा, और जहां पर भी नून और मीम मुशद्दद होंगे वहां पर उनमें जरूर गुन्ना होगा। और तीसरी हालत जो नून और मीम की आ जाती है वो है साकिन वाली। तो साकिन में दोनों की दो दो सूरतें बनती हैं, दो दो हालतें बनती हैं, या ये कह लें कि दोनों को पढ़ने के दो बेहतरीन उसूल जो बनते हैं वो ये है कि नून और मीम जब साकिन होंगे तो फिर इनमें गुन्ना भी होगा और इनमें गुन्ना नहीं भी होगा। गुन्ना कहाँ पर होगा, गुन्ना कहाँ पर नहीं होगा, नून के बारे में अगर आप जानना चाहते हैं तो फिर वो नून वाली वीडियो देखें। और अगर मीम की बात करते हैं तो मीम में ये देखें कि मीम में जो गुन्ना वाली हालत है, एक हालत गुन्ने वाली आ गई और एक बगैर गुन्ने वाली आ गई। तो गुन्ना कहाँ होगा, जहां पर मीम साकिन के बाद मीम या बा आ जाए तो वहां पर गुन्ना होगा, और जहां पर मीम साकिन के बाद मीम और बा के अलावा कोई हरफ आ जाए तो वहां पर गुन्ना नहीं होगा। तो ये नक्शा आपके सामने मौजूद है, आप इस नक्शे का स्क्रीनशॉट ले लें ताकि आपको याद रखने में आसानी हो। तो यकीनन आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो फिर इस वीडियो को लाइक करें, और अगर आप इसी तरह सीखना चाहते हैं तो फिर इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इसको शेयर करें ताकि दूसरे लोग भी जो सीखना चाहते हैं वो भी इस चैनल के जरिए सीख सकें। और आखिर में इस दुआ के साथ आपसे इजाजत चाहता हूँ, अल्लाह पाक हम सबको सही तरीके से कुरान मजीद फुरकान हमीद की तलावत करने, इसका अदब एहतराम करने और इसके अहकामात पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।